So starting with the next second part of the chapter. In the first part we have learned about the different types of microorganisms. We have learned about bacteria, fungi, right? Now we have seen about the commercial and medicinal uses. Now starting with vaccine. So when a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader. ठीक है, जब बॉडी में कोई डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर करेगा तो हमारा जो बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा. क्यों प्रोड्यूस करेगा? टू फाइट अगेंस्ट द हार्म माइक्रोब, राइट. सो द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन. तो हमारे बॉडी को वो हैबिट होता है कि ये माइक्रोब्स अगर रिपीटेडली हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है देन इट हैज़ दी mechanism to fight against the same kind of microbes, right? So if a dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fight and kill the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected फ्रॉम द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर. दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क. ठीक है, तो ये जो मतलब माइक्रोब जब बॉडी में एंटर होता है देन आर बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट दैट माइक्रोब्स, राइट. सो इफ इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू इन naturally fight against microbe, then the vaccine is given to the person which produces antibody and it helps to cure the disease, particular disease, or to kill the particular microbe, right. So this is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpoxes and hepatitis can be prevented by vaccination. So एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. जो स्मॉल पॉक्स के लिए मतलब छोटे बच्चों को स्मॉल पॉक्स ना हो इसलिए वैक्सीन दिया जाता है. ठीक है, सो दैट वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1798. So in your childhood you must have been given injection to protect yourself against several disease. Can you prepare a list of these disease? You can. You may take help from your parents. So you're supposed to do this activity. If you're not getting more information from your parents, you can just go through on Google. You will be getting the list of different types of vaccine which was given you in your childhood, right? So further, it is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Plus Polio program. Polio drops given to children are actually a वैक्सीन. ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो, आप लोग ने भी लिया रहेगा, हर संडे को पोलियो डोजेज आता है. ठीक है, सो दैट इज एन टाइप ऑफ अ वैक्सीन ओनली. सो अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स eradication from most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several disease. अभी वैक्सीन्स जो है वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स की मदद से भी बनाए जाते हैं. Why they are made by the use of microorganisms? To protect humans and animals from several disease. Starting with increasing soil fertility. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. ठीक है, some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere. कोई few bacteria क्या करते हैं, they are able to fix nitrogen from the air, राइट, एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी. वो क्या करेंगे, सॉइल में रह के दे आर एबल टू फिक्स मतलब एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन लेंगे और सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेंगे, राइट. सो दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, राइट. So figure 2.7 indicates the nitrogen fixing cyanobacteria, that is we can say that blue green algae. So this is the microscopic view of the bacteria, right. Next, cleaning the environment. Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruit from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. Bujo and Paheli wanted to know how these had happened. So activity 2.5. Take 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags,
empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside, observe them after 3 to 4 weeks. आप लोगों ने देखा रहेगा नॉर्मली ये जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है, वेजिटेबल वेस्ट में वेजिटेबल वेस्ट या फिर कोई ऑर्गेनिक वेस्ट, काउ डंग एंड ऑल दैट, वो क्या करते हैं, एक पीट में गड्ढा, मतलब गड्ढे में उसको डिकम्पोज करने के लिए रखते हैं. थोड़ी देर के बाद वो मैन्योर में कन्वर्ट होता है एंड दैट इज़ यूज एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर दी क्रॉप्स, राइट. सो पहेली एंड बूजू ने भी ये ऑब्जर्व किया दैट अ स्कूल गार्डनर, जो स्कूल का जो गार्डनर था, दैट ही वॉज ऑल्सो मेकिंग मैन्योर फ्रॉम द वेजिटेबल वेस्ट एंड फ्रॉम द फ्रूट वेस्ट, प्लांट वेस्ट. ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि वो जो गार्डनर था उसने पीट में ये सब वेस्ट डिस्पोज किया था, राइट. एंड आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोजेज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर. सो फॉर स्टडिंग दिस दे हैव परफॉर्म एक्टिविटी ओवर ईयर. उन्होंने पॉट ए और बी लिया है, उसमें उन्होंने एक में पॉट ए में उन्होंने प्लांट वेस्ट डाला है एंड पॉट बी में उन्होंने प्लास्टिक बॉटल, ग्लास बॉटल एंड ऑल थिंग्स डाला है. ठीक है, 3-4 वीक्स के बाद उसको ऑब्जर्व करना है. सो डू यू थिंक यू विल बी फाइंडिंग एनी चेंज, राइट. सो लेट्स सी, do you find any difference in the contents of the two pots? If so, what is the difference? You will find that the plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the actions of microbes. आप लोग देखोगे जो पॉट में, मतलब पॉट ए में जो प्लांट वेस्ट था वो डिकम्पोज होके मैन्योर में कन्वर्ट हुआ है. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो वो डिकम्पोजिशन किसने किया था? माइक्रोब्स ने किया था. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स द डिकम्पोजिशन हैज़ बीन टेकन प्लेस इन पॉट ए, राइट. सो द न्यूट्रिएंट्स released in the process can be used by the plant again. तो ये प्लांट क्या करेंगे, उसको एज अ मैन्योर उसको यूज़ करेंगे फॉर देयर गुड ग्रोथ, राइट. So did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glass bottles and broken toys parts did not undergo any such change. The microbes could not act on them and convert them into manure. जो pot B में जो प्लास्टिक एंड ग्लास बॉटल्स थे उसको वो डिकम्पोज नहीं हुए थे क्योंकि माइक्रोब्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. आप लोगों ने कभी देखा रहेगा, मतलब जो एनिमल्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे एनिमल्स देखो, रैट, राइट, रैट या फिर अर्थवर्म्स एंड ऑल, वो क्या होता है, वो वहाँ पे उसका मतलब वो डिकम्पोज होता है किसकी मदद से? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवर दैम. वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में प्रोड्यूस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एंड दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट एज अ सोर्स ऑफ मैन्योर, राइट. दैट मैन्योर हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो प्रॉपर, राइट. सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए भी हेल्प करेंगे. जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करके वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट करेंगे और उसको इजीली प्लांट इनटेक कर सकते हैं. ठीक है. फर्दर अभी देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो स्टार्टिंग विद 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. तो जो microorganisms human और animals में disease cause करते हैं उसे क्या बोलेंगे? pathogen. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. तो अभी क्या we have seen that microorganisms which are harmful to us, they are known as pathogen. और ये इनका अभी एक्टिविटीज़ देखते हैं. ठीक है. सो लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. सो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स. कौन से डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ह्यूमन को हार्मफुल है? सो पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. तो हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन्स कहाँ से जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज़ द फर्स्ट
सोर्स द वाटर वी ड्रिंक, ठीक है, हम लोग जो पानी पीते हैं उससे भी पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं। द फूड वी ईट एंड द एयर वी ब्रीथ, हम लोग सांस लेते हैं वहाँ से भी वो एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, खाने के साथ भी जा सकते हैं, पानी पीते तब भी जा सकते हैं, राइट। सो दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन or carried by an animal. Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. तो अभी जो डिसीज़ है उसके भी टाइप्स है। पहला टाइप यहाँ पे आया है कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब क्या, जो डिसीज़ हमें फिजिकल कांटेक्ट की वजह से हो जाएगा, ठीक है, या फिर द पर्सन इज अफेक्टेड बाय कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, ठीक है। तो ये डिसीज़ कैसे स्प्रेड हो सकता है, फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, राइट, फ्रॉम थ्रू वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे डिसीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज़, राइट। फॉर Example of such disease include cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis. So these are the examples of communicable disease. You're supposed to write the definition in your notebook and the examples given over here. Further, when a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. जब इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करेगा, ठीक है, तो स्नीज करेगा तो क्या होगा, फाइन ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेडेड इन द एयर, थाउजेंड्स ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेडेड इन द एयर एंड थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। वो ड्रॉपलेट्स के अंदर जो वायरसेस है वो भी एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। सो द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉजिंग इन्फेक्शन। तो ये हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, राइट। सो देयर आर सम insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. Housefly is one such carrier. अभी ऐसे इंसेक्ट्स भी है और एनिमल्स भी है जो ये वायरसेस को, ठीक है, एज अ कैरियर बन के उसको स्प्रेड करने में हेल्प करेंगे। तो वैसे ही फर्स्ट इंसेक्ट कौन सा है, हाउस फ्लाई, ठीक है, मक्खी जिसे हम लोग बोलते हैं। सो हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट। ये जो फ्लाइज है आपने देखा रहेगा, गार्बेज के ऊपर बैठती है, ठीक है, एनिमल एक्सट्रैक्ट के ऊपर बैठता है। सो पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। तो जो ये वेस्ट के ऊपर जो पैथोजन्स रहते हैं वो किसको स्टिक हो जाएंगे, अभी हाउस फ्लाई को स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन when these flies sit on uncovered food they may transfer the pathogens. अभी वो पैथोजन जब ये हाउस फ्लाई वेस्ट के ऊपर जब स्टिक हुआ था तो जो पैथोजन्स थे वो हाउस फ्लाई को स्टिक हुए, ठीक है। उसके बाद ये हाउस फ्लाई जब अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठता है तो वो पैथोजन्स वो फूड में चला जाता है, ठीक है। सो however eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to always keep the food covered. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खाने को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हमेशा कवर्ड रखना चाहिए, ठीक है। सो अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito. अभी हाउस फ्लाई के बाद कौन सा कैरियर आया, क्या कैरियर का नाम है, फीमेल एनाफेलस मॉस्किटो, ये मॉस्किटो का नाम है, ठीक है। सो अंडरलाइन द नेम ऑफ द मॉस्किटो, एनाफेलस मॉस्किटो, विच इज द कैरियर, एनाफेलस मॉस्किटो विच इज कैरियर द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ठीक है। ये इस मतलब ये एनाफिलस मॉस्किटो की वजह से हमें क्या हो सकता है, वी कैन कॉज द डिसीज दैट इज मलेरिया। सो फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर फॉर डेंगू। डेंगू हमें किसकी वजह से हो सकता है, ये जो फीमेल एडीज मॉस्किटो है उसकी वजह से हमें डेंगू हो सकता है। सो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। ये जो मॉस्किटोज़ है एज अ कैरियर ये हमें क्या कर सकते हैं, हमें डिसीज़ कॉज कर सकते हैं एज, ठीक है। तो हमें एनाफिलस मॉस्किटो की वजह से क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, जिसे हम लोग प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। एंड फीमेल एडीज जो मॉस्किटो है वो किसके लिए कैरियर है, वो डेंगू के लिए है। सो इट इज़ एन कैरियर फॉर डेंगू वायरस, ठीक है। सो
तो अभी ये सब हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? So all mosquitoes breed in water, hence one should not let water collect anywhere in cooler, tires, flower pot, etc. ये जो सब मॉस्किटोज़ है उसका ग्रोथ कहाँ पे होता है? ऑब्वियसली उनका पॉपुलेशन कहाँ पे बढ़ेगा? वाटर में बढ़ता है, ठीक है। सो हमें क्या करना चाहिए? हमें वाटर को खुला नहीं रखना चाहिए, ठीक है, और जमा हुआ भी नहीं रखना है, जैसे कि कूलर्स में, हाँ, टायर्स में, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। सो बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग. Try to make a list of major which type we major try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. तो हमें ऐसे मेजर्स लेना है जिससे हम लोग ये मलेरिया डिसीज़ का जो कैरियर, मतलब अभी मलेरिया डिसीज़ का कैरियर कौन है यहाँ पे? फीमेल एडीज मॉस्किटो, राइट, सॉरी, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ठीक है। तो अगर इनका ब्रीड ही नहीं होगा तो ठीक है, तो ये स्प्रेड ही नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे? इनका ब्रीडिंग स्टॉप करेंगे, राइट। कैसे करेंगे? पानी को जमा के नहीं रखेंगे, उससे क्या होगा? उनका पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, राइट। सो we can suggest some more steps to avoid the spread of malaria, right? So सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो यहाँ पे टेबल 2.1 है, इसमें क्या दिखाया है? सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ह्यूमन में कौन से डिसीज कॉज होते हैं उसका यहाँ पे इन शॉर्ट आपको टेबल दिया है. सो यू आर सपोज टू ड्रॉ दिस टेबल 2.1 in your science notebook, right, and you are supposed to read it properly. So some of the common disease affecting humans, their modes of ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1. तो ये 2.1 में क्या क्या दिया है? ह्यूमन डिसीज, ठीक है, किसकी वजह से कॉज होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया है और प्रिवेंटिव मेजर्स दिया है, ठीक है। तो हमें इसे प्रिवेंट कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी बताया है, राइट. सो फर्दर स्टार्टिंग विद डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. So several microorganisms cannot only cause disease in humans and plants but also in other animals. कुछ microorganisms है वो plants और human में नहीं बल्कि animals में भी disease cause करते हैं. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. तो फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस. जो फुट और माउथ डिसीज होता है वो कैटल वो किसकी वजह से होता है? इट इज कॉज्ड थ्रू अ वायरस.